Ji. I hope you all are doing extremely well. So in this video, we will going to start a great playlist for NLP. अब NLP stands for नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ये एक AI की सब फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है इन टुडेज एप्लीकेशंस. ठीक है. अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. आपने श्री का यूज़ किया होगा और गूगल असिस्टेंट का यूज़ किया होगा. दे आर इंटरनली यूज NLP. नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग. ठीक है. तो अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि नॉट ओनली इंट्रोडक्शन टू NLP. इन दिस वीडियो वी विल कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक रिलेटेड टू द NLP, like importance of NLP and need of NLP. What are the real world applications exist in this universe that use NLP behind? NLP tasks. What are the common tasks for completing the end-to-end NLP application? What are the approaches? Now there are different types of approaches for the different types of problems in the NLP. And what are the challenges that you may be faced in the development of the NLP applications? So this wide of range, with this wide of range of topics are covered in this video. So I hope you will interesting for this video. If you interested, please cover end to end. Watch this video. ठीक है. After completing the end to end video, you will able to solve what your examination questions. That's the interesting and that's the beauty of this video. Because the video I'll try to make this also cover a lot of topics. Not only a lot of topics, all units from your subject AL504 Natural Language Processing. It is a subject. If you not belong to this subject, so you definitely going to watch this video because this video also cover a fundamental topics, not the theoretical concept. ठीक है. So I hope the point is clear. If the point is clear, so please do share this video, do like this video and subscribe the Progology channel. Now let's start with the interesting topic why this video is going to very interesting. If you are AI enthusiast, so you might be know about the different domains in the AI. So NLP is one of the domain where the lot of the applications are published in the universe. ठीक है. So one of the great application is Google Shri. ठीक है, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाता है. अब NLP का मतलब क्या है? नेचुरल लैंग्वेज. नेचुरल लैंग्वेज मतलब क्या होता है? लाइक अपनी लैंग्वेज जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ. और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. अब मैंने सिरी से पूछा कि हाउ द गूगल असिस्टेंट इन सिरी विल वर्क. इट गिव मी आंसर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आई होप यू गॉट इट द पॉइंट कि व्हाई दिस वीडियो इज इंटरेस्टिंग. एंड मैंने उससे अगेन पूछा कि सो गिव मी आंसर डेट मे बी, सो गिव मी आंसर फॉर माई क्वेश्चन. सो इट से कि इट मे बी बियॉन्ड माई एबिलिटीज एट द मोमेंट. सो आप समझो कि NLP को अंडरस्टैंडिंग करना इट इज लाइक अ मास्टर थिंग. ठीक है. सो किस तरह से गूगल यूज करता है, आप गूगल पे कई सारी चीजें सर्च करते हो, वो किस तरह से वर्क करती है इंटरनली, उनको इस वीडियो में अपन एक्सप्लेन करने वाले. ठीक है. सो आई होप कि आप इंटरेस्टिंग हो. अब चलते हैं अपन अपने नोट्स के थ्रू और नोट्स पे अपन यूज करते हैं अपने पेन का और पेन का कलर रखेंगे अपन ग्रीन. ठीक है, फॉर पॉजिटिव वाइब्स. अब सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज NLP. सो एक बेसिक से डेफिनेशन है. आप वीडियो को चाहो तो 1.5x में भी देख सकते हो बिकॉज आपको टाइम का यूटिलाइज करना है और मुझे आपको कम से कम टाइम में बेटर नॉलेज देनी है. ठीक है. NLP or natural language processing is a field of AI that focus on enabling computer to understand, interpret and respond to the human language. It powers technologies like chatbot, translation service, voice assistance, analyzing text and speech data to make sense human communication. अब आपने समझा कि NLP क्या है. NLP एक सब फील्ड है AI की जिसकी काफी सारी एप्लीकेशंस को आप अभी यूज करते हो. ठीक है. चैटबॉट्स हो गए, गूगल ट्रांसलेट सर्विस हो गई, वॉइस असिस्टेंट्स लाइक सिरी एंड एलेक्सा. ठीक है. ये सारी चीजें ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग कर रही हैं. ठीक है. अब ह्यूमन लैंग्वेज की बहुत सारी लैंग्वेज हैं. ठीक है. एंड देयर आर 195 कंट्रीज एंड देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस डेट कैरी इन दिस यूनिवर्स. ठीक है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है. ठीक है. एट दी एंड गोल क्या है NLP का, तो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में. बट आप समझो कि जो NLP एप्लीकेशन आपने अभी देखा लाइक ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स एंड वॉइस असिस्टेंट, ये किन किन टेक्नोलॉजी से मिलके बने. सबसे पहले टेक्नोलॉजी तो हो गई आपकी क्या, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर साइंस जिससे आप सब अवेयर हो, जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, एंड ह्यूमन लैंग्वेजेस. तो अब ये कैसे एक NLP एप्लीकेशन वर्क करेंगे. डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स आप यूज करोगे, कंप्यूटर साइंस के बेसिक फंडामेंटल्स आप यूज करोगे, डेटा लाइक ह्यूमन लैंग्वेज का डेटा आप यूज करोगे, तब जाके आप एक NLP एप्लीकेशन को बिल्ड कर पाओगे. आई होप कि आपको समझ में आया होगी
इंट्रोडक्शन टू एनएलपी क्यों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ एनएलपी समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ एनएलपी से पहले ये टर्म एनएल इज स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, तो इसको बारे में हम करते हैं और समझते हैं। Natural language is the language that human use to communicate with each other, like English, Hindi, or Spanish. It different from the programming language, and it is full of variations, explanation, context, and natural language evolves over a time can be complex with slang and multiple meanings. ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश जैसी लैंग्वेज होती है जो कि अपन ह्यूमंस यूज करते हैं आपस में बात करने के लिए। अब आप एक बेसिक सी चीज समझो कि क्यों ये इंपॉर्टेंट थिंग है एक एनएलपी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। तो आपका एंड टू एंड गोल क्या है कि आप मशीन से ह्यूमंस की तरह बात कर पाओ, आप मशीन से नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाओ। वो कब होगा, जब मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगी। ठीक है, तो इसका यूज केस समझो। आप मान लो जोमेटो के पास हंड्रेड्स बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है, मतलब मिलियंस ऑफ यूजर्स तो हैं ही उसके पास। ठीक है, तो उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो यदि उसको चैट सर्विस प्रोवाइड करनी है लाइक ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, तो वो हजारों लोगों को हायर थोड़ी ना करेगा। दे इंटरनली यूज टेक्नोलॉजी लाइक चैटबॉट्स जो कि ह्यूमन की तरह यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब नेचुरल लैंग्वेज तो आप समझ गए जो कि दो ह्यूमंस आपस में यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अब व्हाट इफ द आइडिया बिहाइंड एनएलपी कि दिस नेचुरल लैंग्वेज इज ऑल टू अंडरस्टैंड बाय द मशीन्स। अब मशीन से मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं, फिर आपका नेचुरल लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। क्योंकि आप एज्यूम करो कि आपके पेरेंट्स यदि अनएजुकेटेड नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि उनको एटीएम से पैसे विड्रॉ करने हैं। ठीक है, एटीएम इज अ मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिससे आप पैसे विड्रॉ करते हो। ठीक है, विड्रॉ द मनी। तो क्या होगा कि आप उनको तो आता नहीं है कि इस मशीन को कैसे चलाएं, वो तो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड के हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसा कुछ एप्लीकेशन बिल्ड हो कि वो इंटरनली इस कंप्यूटर में इस एप्लीकेशन के पास जाएं, इस सिस्टम के पास जाएं, मशीन के पास जाएं और उससे बात कर पाएं ह्यूमन लैंग्वेज में जो कि उन्हें आती है। ठीक है, कि आपको कैसे यूज करूं, कैसे पैसे विड्रॉ करूं बताओ, और ये आपको रिप्लाई करे कि आप इस बटन को दबाओ, उस बटन को दबाओ। तो सोचो कितना ज्यादा एडवांस हो जाएगा। तो अभी की जो एप्लीकेशन है यदि मैं बोलूं तो अपन ने इसमें एनएलपी में ओनली 10% एनएलपी का यूज केस किया है अभी की सारी एप्लीकेशन में। तो एनएलपी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। अब अपन पढ़ते हैं कि नीड तो आपको मैंने बता ही दिया, इंपोर्टेंस भी आपको पता चल गया। अपन पढ़ते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी। ठीक है, क्या एनएलपी की एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको हेल्प कर रही हैं, अभी आप उनका यूज केस समझ रहे हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है आपको इंस्पायर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ एनएलपी। तो आपने डेली आपने डेली गूगल सर्च बार का यूज तो किया ही होगा। ठीक है, तो यूजेस एनएलपी टू अंडरस्टैंड द यूजर क्वेरी एंड डिलीवर रिलेवेंट सर्च रिजल्ट इवन फॉर अ कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेंशनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब क्या है कि गूगल यूज करता है एनएलपी को इंटरनली। अब आप इससे क्वेश्चन कॉमनली यदि पूछो कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसको डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है, इसकी लैंग्वेज में इसको पता है कि हाँ मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये आपको डायरेक्टली आंसर कर देगा लाइक अ चैटबॉट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि गूगल किस तरह से एनएलपी का यूज कर रहा है। ठीक है, आपने कई सारे असिस्टेंट देखे होंगे, वॉइस असिस्टेंट, ठीक है, लाइक सिरी, गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा फ्रॉम अमेजोन। So Apple, Siri and Amazon Alexa really have on NLP to understand the voice command, answer questions and perform the task like setting reminder for or play the music. अब एग्जांपल आपको रियल वर्ल्ड यहाँ पे देते हैं कि हाय श्री व्हाट आर यू डूइंग। हे गुड मॉर्निंग श्री। ठीक है, तो इसने समझा मेरी नेचुरल लैंग्वेज को और मुझे आंसर दिया। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे हो किस तरह से इसने मेरी ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टूड करा इन जस्ट अ सेकेंड्स। सो ये भी एनएलपी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। गूगल ट्रांसलेटर प्रोवाइड ट्रांसलेशन अक्रॉस द मल्टीपल लैंग्वेज यूजिंग एनएलपी टू इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप किसी भी भाषा में गूगल ट्रांसलेटर को आपकी भाषा से कन्वर्ट करा सकते हो, लाइक हिंदी टू इंग्लिश जिसका आप जर्नली यूज करते हो, इसके लिए भी एनएलपी एप्लीकेशन का यूज हो रहा है। Chatbot and customer service bots. Many companies, include banking, retail, use NLP-powered chatbots like those from Gentex and Drift handle the customer queries for the customer support.
जैसा कि मैंने आपको अभी जोमेटो का एग्जाम्पल प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन लैंग्वेज को ये एनएलपी प्रोवाइड करता है चैटबॉट को पावर कि ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग कर पाए वो, ठीक है। ग्रामरली एक एप्लीकेशन है जिसपे आप जाके अपनी ग्रामर को एक्यूरेट कर सकते हो। एआई राइटिंग पार्टनर एनीवन हु वर्क्स टू डू, ठीक है। एआई फ्यूचर पार्टनर है ग्रामरली, एन एआई बेस्ड राइटिंग असिस्टेंट यूज एनएलपी फॉर चेकिंग द ग्रामर्स एंड स्पैम फिल्टर। ईमेल स्पैम फिल्टर में ये बात आपने कभी यूज किया होगा, तो स्पैम को कैसे डिटेक्ट करते हो आप यूजिंग सम कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो NLP help classify the email as spam to important by analyzing the keywords pattern and instant sender reputations, ठीक है। तो कुछ भी कीवर्ड्स होते हैं लाइक यहाँ पे बार बार अप्रोच लिंक्स ज्यादा मेंशंस हैं, तो इन सारे टर्म्स में अपन अपने ईमेल को स्पैम बोल देते हैं, ठीक है। तो इंटरनली ये चीजों को फैक्ट कर रहा है, वो कर रहा है NLP एप्लीकेशन, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को आई होप कि आप समझ पा रहे हो किस तरह से इनका यूज केस है। एंड सेंटिमेंटेड एनालिसिस इन द सोशल मीडिया एंड मॉनिटरिंग, ये तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है। लाइक ब्रांड वॉच एंड हुड स्वीट NLP हेल्प टू अंडरस्टैंड द कस्टमर सेंटिमेंटेड। आप इसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि आपके जो कस्टमर के हैं वो रिव्यूज क्या क्या हैं। जैसे कि आप, यदि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ NLP और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई डेफिनेटली श्योर कि यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम आपको इंटरनली कहीं ना कहीं नीचे और इससे रिलेटेड वीडियो सजेस्ट कर रहा होगा। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब आपके बिहेवियर को एनालाइज करने से हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है कि द रिस्पॉन्स ऑफ योर यूजर या फिर कस्टमर इज गुड, इज नॉर्मल और इट्स डल, ठीक है। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अपन NLP का यूज करते हैं। ऑटो करेक्ट एंड प्रिडिक्टिव टेस्ट, ठीक है, ये भी आपने यूज किया होगा। जब भी आप टाइपिंग करते हो तो आपके कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, जैसे कि आप लिखते हो WH, तो इट ऑटोमेटिकली सजेस्ट व्हाट, ठीक है। तो ये आपको सजेशन जो मिल रहा है ये भी आपको NLP एप्लीकेशन की वजह से मिल रहा है, NLP की पावर की वजह से मिल रहा है, ठीक है। नेटफ्लिक्स एंड Amazon रिकमेंडेशन सिस्टम लाइक एनालाइज द यूजर प्रेफरेंस, रिव्यू, वॉचेस द हिस्ट्री एंड कमेंट मूवीज एंड शो क्वेस्ट। तो यदि आपने कुछ टॉलीवुड पिक्चर्स यदि आपने यूट्यूब में देखी है या फिर नेटफ्लिक्स में देखी है, तो इट डेफिनेटली श्योर कि द नेक्स्ट रिव्यू या फिर नेक्स्ट जो आपको रिकमेंडेशन आएगी वो भी उन्हीं कैटेगरी से रिलेटेड आएगी। सो इट ऑल्सो it's also possible because of NLP. Videos might be long but you able to understand, that's a great thing for me, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिटर, आपने ग्रामर की चेकिंग करी होगी, आप कुछ गलत लिखते हो तो वहां पर रेड कुछ लाइन्स आ जाती हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि स्पेलिंग गलत है और आप उसको ठीक कर सकते हो। दिस ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ NLP एप्लीकेशन, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज को वो समझ पा रहा है, ह्यूमन लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड समझ कम पा रहे हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ इमेज, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑडियो, ठीक है। अब आपको एक क्विक रिव्यू कि एप्लीकेशंस ऑफ NLP क्या क्या है। चैटबॉट्स हैं, ठीक है, आपके लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स हैं एंड टेक्स्ट समराइजेशंस हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस, वॉइस असिस्टेंस एंड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स। तो आपने अभी कवर किया डीप में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब कुछ NLP के टास्क हैं जो कि आप कैरी करोगे ही करोगे यदि आप NLP एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए सोच रहे हो। NLP एप्लीकेशन के क्या क्या टास्क होते हैं समझ लेते हैं कि आर कोर प्रोसेस टू एनेबल द मशीन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। तो मशीन को एंड टू एंड आपको ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करानी है, तो आप कैसे कराओगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टास्क है वो है टोकनाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन द टेक्स्ट इनटू अ स्मॉलर यूनिट लाइक वर्ड सेंटेंस, एसेंशियल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड इट हेल्प्स द स्ट्रक्चर टेक्स्ट। तो सबसे पहला काम तो यही हो गया कि आपका यदि कोई पैराग्राफ है, ठीक है, उस पैराग्राफ को आपका जो टोकनाइजेशन प्रोसेस है वो क्या करेगा, इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस, इन टर्म्स ऑफ वर्ड, इन टर्म्स ऑफ लेटर, और उन सबको एक टोकन प्रोवाइड करेगा। टोकन मतलब कि नंबर, क्योंकि एट दी एंड आपकी मशीन क्या करेगी, नंबर्स को अंडरस्टैंड करेगी, नॉट द वर्ड को अंडरस्टैंड करेगी 1 और 0 के फॉर्मेट में, ठीक है। Text classification like categorizing the text into a predefined tables such as spam detection, sentimented analysis like positive, negative और न्यूट्रल वर्ड्स, ठीक है। तो ये भी एक टास्क होता है जो कि आप परफॉर्म करते हो जब भी आपको टेक्स्ट समराइजेशन कुछ एप्लीकेशन को बिल्ड करना है। मान लो आप टाइम्स इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसमें आपको एक न्यूज़ दिख रही है, आप उसको एक ऐसा NLP एप्लीकेशन बनाना है कि आप उसका समराइजेशन नीचे दे पाओ, ठीक है। इस पूरी न्यूज़ का समराइजेशन यदि आप प्रोवाइड कर पाओ तो वो कैसे करोगे, इन डिटेक्टिंग द वर्ड, नेचुरल वर्ड्स,
इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बेसिस पे आप इसकी समरी आप प्रोवाइड कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक और टास्क है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द टास्क। नेमेड एंटिटी रिकॉग्निशन, इसको NER भी बोलते हैं। आइडेंटिफाइंग द क्लासिफाई एंटिटीज लाइक नेम, लोकेशन, डेट्स एंड रिकॉग्नाइजेशन विथ टेक्स्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। लेवलिंग द ईच वर्ड्स विद द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच, लाइक आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आप उसको पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड कर रहे हो कि कौन सी चीज आपकी टेक्स्ट है, आपकी नाउन है, आपकी वर्ब है, आपका एंटिटी है, आपकी एग्जेक्टिव है। तो ये सारे एप्लीकेशन टास्क हैं जो आप यूज केस समझ सकते हो। आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपने कवर कर लिया है यहाँ तक। एंड देन सेंटिमेंटेड एनालिसिस, आपको डिटेक्टिंग द इमोशनल टोन बिहाइंड द टेक्स्ट ऑन द सोशल मीडिया, मॉनिटरिंग कस्टमर एंड फीडबैक रिव्यूज। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस का मतलब है कि आपको ये डिटेक्ट करना कि आप यदि सोशल मीडिया जैसा कुछ प्लेटफॉर्म के ओनर हो तो आप वहां पे कुछ भी नहीं चाहोगे कि आपको एडल्ट कंटेंट वहां पे दिखे, एडल्ट एब्यूसिंग कंटेंट आपको दिखे, तो आप वहां पे एनएलपी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो डिटेक्ट करने के लिए। ऑडियो में कोई भी रॉन्ग वर्ड तो यूज नहीं किया होगा। देन ओनली यू टू अलाउ टू पब्लिश एंड अपलोड द वीडियो ऑन योर प्लेटफॉर्म। तो इट इज ऑल्सो अ part of and task of NLP. Machine translation, like translating text from one language to another language, like English to France. This is also a task. ठीक है, dependency parsing, analyzing the grammatical relationship between the words in the sentence. तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे समझो आप एक चीज की आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें एक ही वर्ड के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी फनी। आप यदि किसी के पांव पड़ रहे हो तो अपने इंडिया में बोल सकते हो कि इसके चरण स्पर्श कर लो। यदि आपको किसी पे गुस्सा आता है तो आप उससे बोलते हो कि तेरे को एक लात मार दूंगा। ठीक है, यदि आपका कुछ ब्रेक हो गया तो आप बोलते हो कि टांग टूट गई। ठीक है, यदि आपको किसी की तारीफ करनी है तो आप बोलते हो वाह यार आपके पाँव कितने सुंदर है। तो देखो एक ही वर्ड लेग, ठीक है, यदि आप जिम में जाते हो आप बोलते हो आप मेरा लेग का डे है। तो एक ही डिफरेंट मीनिंग, एक ही वर्ड की कितनी सारी डिफरेंट मीनिंग हो सकती है। ये अंडरस्टैंडिंग कराना एक मशीन को ये काफी चैलेंजिंग काम है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इन टास्क को क्यों आप यूज केस पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एट द एंड मशीन को अंडरस्टैंडिंग कराना है नेचुरल लैंग्वेज। तो अब मैंने बोला चैलेंजिंग काम है, तो आप सबसे पहले समझते हैं कि उस चैलेंज को अप्रोच कैसे कर सकते हैं और फिर पढ़ते हैं चैलेंजेस। ठीक है, अब चैलेंजेस की याद करूं मैं तो एनएलपी को अप्रोच करने के लिए यहाँ पे अपने 3 मेन चैलेंज है। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है रूल बेस्ड चैलेंज। आप ये बहुत ही बेसिक सी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। आप यूज मेनली क्राफ्टिंग द लिंग्विस्टिक रूल्स एंड डिक्शनरी टू प्रोसेस द टेक्स्ट। एडवांटेज इफेक्टिव फॉर द सिंपल टास्क एंड रिक्वायर द लेस डाटा। लिमिटेशन नो स्केलेबल फॉर एडिटेबल कॉम्प्लेक्स नेचुरल लैंग्वेज टास्क। ठीक है, रूल बेस्ड अप्रोच को आप बोलते हो ह्यूरिस्टिक अप्रोच। इसमें आप कुछ रूल्स बना देते हो। ठीक है, अब रूल्स के हिसाब से आपका जो मशीन है वो अंडरस्टैंडिंग करता है कि हाँ दिस इज लाइक दिस। ठीक है, डेटा है, डेटा के ऊपर अपने कुछ रूल्स बनाए, उनके ऊपर कुछ लेवल्स क्रिएट करे एंड दिस विल एबल टू प्रेडिक्ट द नेचुरल लैंग्वेज टास्क। आपने कुछ देखा होगा कि आपने कुछ न्यूज में देखा होगा दे आर यूज साइन लैंग्वेज। साइन के थ्रू बताते हैं कि यहाँ वो इधर पे बारिश हुई है, इधर पे ये हुआ है, वो हुआ है। दे आर लाइन ऑफ साइन लैंग्वेज। तो साइन आर लाइक अ रूल्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि रूल बेस्ड अप्रोच है जो कि एक एनएलपी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यूज होती है व्हेन यू हैव some simple task and you not to require less data। अब एट द एंड जब मशीन लर्निंग बूम हुआ तो नॉट ओनली सिंपल टास्क को आप यूज केस समझ पा रहे हो, आप मशीन लर्निंग के थ्रू एनएलपी को बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सुनो इसका। यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग ऑन द लेवल डाटा। ठीक है, पैटर्न एंड मेक प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो कुछ ऐसे चैटबॉट्स हैं जो कि आपको अपने पर्सनलाइज डाटा पर ट्रेन करने। चैटबॉट लाइक कि आप ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ रहे हो। आपने एस्ट्रोलॉग करके एक बहुत फेमस ऐप है जो पे आपको एक चैटबॉट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उसमें जो स्टार्टिंग से जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए होती है कि ह्यूमन यहाँ पे गर्लफ्रेंड को सर्चिंग के लिए आया है, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज के कारण आया है, बिजनेस इश्यूज के कारण आया है। ठीक है, उसके बाद आपको कनेक्ट किया जाता है बेटर आपकी कैटेगरी के हिसाब से किसी मास्टर एस्ट्रोलॉजिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मशीन लर्निंग के ऊपर एक लेवल डाटा होता है जिसके थ्रू वो अंडरस्टैंडिंग करके आपको एक बेटर रिजल्ट देता है। लिमिटेशन क्या है, रिक्वायर द लार्ज डाटा सेट ऑफ्टन द फेल टू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टेक्स्ट। एडवांटेज क्या है, कैन हैंडल द मोर वेरिएशन इन लैंग्वेज अडॉप्ट बेटर देन द रूल बेस्ड मेथड। ठीक है, रूल बेस्ड मेथड से अच्छा होता है
और इसमें कुछ सिंपल से एक चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है कि आपने यदि लिमिटेशन, यदि आप डाटा एक्वायर कर रहे हो इन दी मशीन लर्निंग मॉडल, तो आपको वहां पे फ्यूचर को खुद डिफाइन करना पड़ेगा। तब आता है मास्टर ऑफ द एनएलपी, ठीक है, जिसका नाम है डीप लर्निंग। तो ये हो गए आपके बार्ड या फिर जीपीटी सर्विस, आपने अभी देखा होगा, जिसका आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। डेट हैव लर्नेड लैंग्वेज पैटर्न्स फ्रॉम द बेसिक टेक्स्ट कोपरा। लिमिटेशन क्या है, रिक्वायर द हाई कंप्यूटेशनल पावर। तो नॉट ओनली आप जो चैट जीपीटी यूज करते हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सर्वर है जो कि वहां पे आपकी प्रोसेस करता है आपकी क्वेरीज को और आपको नेचुरल लैंग्वेज में आंसर देता है, ठीक है। तो आप समझो कि ये डीप लर्निंग एक एडवांस फील्ड है। आफ्टर 2010 जब यहाँ पे पाईटॉर्च और टेंसर फ्लो जैसे फ्रेमवर्क्स आए, तो उसके बेसिस पे आप डीप लर्निंग या फिर एनएलपी मॉडल्स को एवेल्यूएट कर पा रहे हो ह्यूमन से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट इज क्लियर कि आपने 3 अप्रोचेस सीखी जिसके थ्रू आप डीप लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है, एनएलपी की प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो आप। चैलेंजेस क्या है, सबसे पहली जो चैलेंज है वो है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ अ वन वर्ड। अब यहाँ पे देखो कॉल मी अ टैक्सी, तो यहाँ पे ये इससे बोल रहा है कि मुझे टैक्सी दो, ठीक है, बट ये क्या समझ रहा है कि यू वांट टू मी टू गेट यू अ टैक्सी और टेल यू आर अ टैक्सी। तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, आपको मैं टैक्सी बुलाऊं या फिर आपके लिए टैक्सी बुलाऊं। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी इज सच अ बिग प्रॉब्लम कि आपके टेक्स्ट, आपके डेटा की एम्बिग्यूटी को आप कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग कराना आपके मॉडल को कि ये वर्ड लिखा है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको लेग वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। डेटा इशू, आपका जो डेटा है उसमें आपको इश्यूज होंगे बहुत सारे, लाइक सेंटिमेंटल एनालिसिस मॉडल ट्रेन ओनली ऑन इंग्लिश डाटा, ठीक है, एनालाइज टू हिंदी और रोल रिसोर्सेस लैंग्वेजेस, उसको आपको एक्यूरेट करना। ग्रामेटिकल एरर होंगे, आपको वर्ब नाउन वर्ब, आपको उसमें टोकनाइजेशन करना, आपको कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंडिंग करना, आपको एम्बिग्यूटी सॉल्व करना। दे ऑल आर प्रोसेस डेट वी परफॉर्म वाइल क्लियरिंग द डाटा फॉर अवर एनएलपी मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया लैंग्वेज वर्बिलिटी। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्बलिटी है, ठीक है, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। मान लो आप नए नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपकी जॉब लगी हैदराबाद में या आपकी जॉब लगी बेंगलोर में, सो दे आर साउथ एरिया, ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा कम्युनिकेशन एरर आ सकता है। तो ये आपके मॉडल को कैसे समझ में आएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कुछ और कि आपकी ग्रामेटिकल एरर भी हो सकती है, लाइक नाउन मीनिंग सिनोनिम्स एंड एग्जांपल्स। रियल वर्ड प्रोसेसिंग, ये एक और बहुत बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है आपके एनएलपी एवोल्यूशन के लिए। अब वॉइस असिस्टेंट्स लाइक सिरी मस्ट प्रोसेस द स्पोकन कमांड्स क्विकली व्हाइल मेंटेनिंग द एक्यूरेसी, ठीक है। रियल वर्ल्ड में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज इन एनएलपी एप्लीकेशंस, बिकॉज आप वहां पे आप उसको 0 और 1 नहीं, आप उसको ह्यूमन लैंग्वेज में टास्क दे रहे हो, ठीक है। लैंग्वेज एवोल्यूशन एक और टास्क कि आपको कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, लाइक हेलो से लेके हाय से लेके कितने सारे एक वर्ड को कितनी सारी टर्म्स में आप भाषाओं में बोल सकते हो, ठीक है। तो हेलो, हाय, स्पेनिश, नमस्ते, सो दे ऑल आर वन वर्ड हैव अ डिफरेंट ट्रांसलेशन। तो उसको आपका लैंग्वेज कैसे समझ पाएगा। तो अभी आपको मैंने बताऊं तो रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने एक एआई टेक्स्ट एप्लीकेशन बनाया था। तो वो डिफरेंटली आपको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे सकता था, ठीक है। उसके लिए मैंने गूगल का एक पेनलैन करके एक मॉडल था उसका यूज किया था और स्ट्रीमलीड में उसको बिल्ड किया था। तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यदि आपको एआई से रिलेटेड छोटी मोटी एप्लीकेशंस को बिल्ड करना है और एंड टू एंड प्रोसेस समझना है कि किस तरह से आप यूज केस समझ सकते हो इन मॉडल्स का, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मल्टी मॉडल एनएलपी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग द टेक्स्ट एंड इमेजेस। तो यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट है, इमेज है, दे ऑल आर द पर्पस, दे ऑल आर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं आपको मीडियम बताऊं तो 2 मीडियम से आप मेरी चीजों को समझ पा रहे हो, एक तो इमेज के मीडियम से और एक मेरी ऑडियो के मीडियम से, ठीक है। सो दे ऑल आर द कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन वेज। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी, हैंडलिंग द मिलियंस ऑफ ट्वीट्स डेली फॉर द सेंटिमेंटेड एनालिसिस इन द रियल टाइम, बोथ इफिशिएंट एंड स्केलेबल इंस्ट्रक्शन। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको समझने के लिए कि किस तरह से मिलियंस ऑफ ट्वीट्स या फिर यूजर्स को इजीली अंडरस्टैंडिंग करते हैं आपके एनएलपी मॉडल्स, ठीक है। तो आई होप कि आपका वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज डू शेयर, डू लाइक, डू कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो
and don't forget to subscribe the Procodergy, and we will very nearly close to reach the 1K community and the family. So please subscribe the channel, and thank you for coming me at the end of the video, and all the best for your exams.